Welcome to Shikshaism. Today we'll discuss the optical aspect of SN reactions. SN reaction के optical aspect को discuss करने के लिए optical isomerism के कुछ basic terms के बारे में जानना जरूरी है. You have studied about isomerism in 11th standard, but that isomerism is a structural isomerism. Here we are discussing the stereo isomerism, optical isomerism rather in detail. और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिक टर्म्स के लिए जानकारी जरूरी है एंड दोज टर्म्स आर ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्वालिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेजमाइजेशन. So today in this session we'll discuss all these five terms related to the stereo aspect or stereochemical aspect of a nucleophilic substitution reaction. In order to understand the stereochemical aspect of a substitution reaction, we need to learn some basic chemical principles regarding the or notation regarding the optical isomerism. जिसमें सबसे पहला जो टर्म है it is optical activity. Optical activity का मतलब है a substance which is optically active. The optically active substance is a substance which can deviates or which can rotates the plane of polarized light either into the left hand direction or into the right hand direction. एक ऐसा कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करे either into the left hand direction or into the right hand direction, those compounds are called optically active compounds. Now what is the meaning of plane of polarized light? Let's see. लाइट सोर्स एक लाइट सोर्स है जिसमें से प्रोड्यूस होने वाली लाइट्स डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स. डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट होती है, अलग अलग डायरेक्शन में ये लाइट जो है वो प्रोपोगेट करती है व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लाइट सोर्स. इफ इट इज पास थ्रू अ पोलराइजर, पोलराइजर के तौर पर निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल हो सकता है, निकोल प्रिज्म. Then this light which is propagated into the different direction of a different wavelength, the light rays are arranged in a parallel to each other. ये light rays जो है वो एक दूसरे को parallelly arrange हो जाएंगे, which creates the plane polarized light. ये क्या create करते हैं? Plane polarized light. Now this plane polarized light, plane of polarized light, plane in which the light rays are parallel to each other. When this plane of polarized light is passing through the substance, suppose कोई compound कोई substance में से इसको pass किया जा रहा है, and if this compound deviates or rotates this plane of polarized light either into the right hand direction or it can rotate it into the left hand direction, इसको left hand direction में rotate किया जाए about certain angle, कुछ एंगल से ये रोटेट हो रहा है, रोटेट either into the right hand direction or into the left hand direction. Depending upon the rotation, this compound is called dextrorotatory having plus sign or levorotatory having minus sign. Dextro means right and levo means left. अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होगा, इट कैन डेविएट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट हमने क्रिएट करी है, ये लाइट को वो रोटेट करेगा बाय सर्टेन एंगल. एट सर्टेन एंगल इफ द लाइट इज रोटेटेड इनटू द राइट हैंड डायरेक्शन, द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी. इफ द सब्सटेंस डेविएट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इनटू द राइट हैंड डायरेक्शन बाय सर्टेन एंगल, द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस, एंड दिस डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय डी or plus sign. If this substance deviates the plane of polarized light into the left hand direction, the substance is called levorotatory and having a minus sign. But all in all, this substance is called optically active substance. So कोई भी optical activity जो है वो depend करती है, it is associated with the rotation of plane polarized light. और ये जो rotation है इसको measure किया जाता है through polarimeter tube. पोलरिमीटर ट्यूब की जो लेंथ है उसके वगैरह के कैलकुलेशन होते हैं और उसके बेसिस पर इनका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो मेजर किया जाता है. बट
the compound is optically active if it rotates the plane of polarized light either into the right hand direction or into the left hand direction. See, optical activity. We have optical activity in our theory. The plane of polarized light produced by ordinary light through Nicol prism. Through Nicol prism, मतलब plane polarized light बन जाती है. When it is rotated or when it is passed through the solution of a certain compound, the compound is called optically active compound. The angle by which the plane of polarized light is rotated is measured by an instrument called polarimeter. As I mentioned, polarimeter से ये जो rotation है उसको measure किया जाता है. If the compound rotates the plane of polarized light to the right hand direction, that means clockwise, it is called dextrorotatory. Greek में dextro का मतलब right होता है. It is denoted by D form. उसको D form कहते हैं, या तो फिर indicated by placing a positive sign before the degree of rotation. जितना भी degree of rotation होगा, angle जो होगा उसके आगे plus sign लिखी जाएगी. ये plus sign indicate करती है that it is a dextrorotatory substance. If the light is rotated towards the left hand side मतलब anti-clockwise direction, then the compound is said to be levorotatory, and the negative sign is used before the degree of rotation. Degree of rotation के पहले अगर negative sign है, you can say that it's a levorotatory. If it does contain a positive sign, it's called dextrorotatory. Degree of rotation, such plus and minus isomers are called optical isomers, and the phenomena is termed as optical isomerism. ये जो dextro और levo substances है, इनको optical isomers कहते हैं, and this phenomena is known as optical isomerism. तो ये पहला important point था related to the stereochemical aspect of a nucleophilic substitution reaction, जो term था optical activity. Moving forward, optical activity के बाद जो second term है associated with it is called chirality. Chirality. Let's see chirality. The molecular asymmetry, chirality and enantiomers. ये यहाँ पर हम तीन टर्म डिस्कस करने वाले हैं. मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, सिमेट्री का ऑपोजिट होता है एसिमेट्री. सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल, सेम. एसिमेट्री मतलब गड़बड़ वाला. इफ वी आर हैविंग मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, देन इट इज कॉल्ड chirality, and chirality can produce enantiomers. Let's see what these three terms means. इनका मतलब क्या होता है. The observation of Louis Pasteur. Louis Pasteur का नाम सुना होगा. The observation of a Louis Pasteur in 1848 that crystals of a certain compound exist in form of a mirror images. उन्होंने देखा था कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं कुछ कंपाउंड के जो दो क्रिस्टल एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो सकते हैं. laid a foundation of modern stereochemistry. इन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री की शुरुआत करी मिरर इमेजेस. उन्होंने देखा कि कुछ कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऐसे थे कि जो दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करते हैं, देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज अ मिरर इमेज ऑफ अनदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. एक दूसरे की मिरर इमेजेस थे, और यहीं से हमने ऑप्टिकल या हम कह सकते हैं कि मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई है. He demonstrated that the aqueous solution of both the crystal showed optical rotation. उसने ये भी बताया, उन्होंने ये भी शो किया कि ये दोनों क्रिस्टल के अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो ये एक्वियस सॉल्यूशन में से जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास की जाती है, तो वो अलग अलग एंगल पर, मतलब डिफरेंट एंगल पर ये लाइट को क्या करती है, डेविएट करती है. डेविएट करती है का इसका मतलब ये है कि दे शो ऑप्टिकल रोटेशन. This optical rotation is equal in magnitude but opposite in direction. दोनों क्रिस्टल जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस थे, ये दोनों क्रिस्टल के एक्वियस सॉल्यूशन में से जब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करेगी, तो एक सॉल्यूशन लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता था अपवर्ड सर्टेन डिग्री थीटा. दूसरा सॉल्यूशन थीटा एंगल पर ही प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करता था बट इनटू द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन. मतलब एक राइट दूसरा लेफ्ट, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. But opposite direction, as I mentioned. He believed that this difference in optical activity was associated with the three-dimensional arrangement in atoms of molecules. This is called configuration. उन्होंने सोचा कि ये जो रोटेशन में जो डिफरेंस है, it is due to the three-dimensional arrangement of atoms in a space. स्पेस के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशन में, उसमें डिफरेंस होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व होती है. और ये जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है उनको उसने नाम दिया कन्फिग्यूरेशन. मतलब कन्फिग्यूरेशन की वहां से शुरुआत हुई, मॉलिक्यूलर कन्फिग्यूरेशन.
Two type of crystals. Two type of crystals. The Dutch scientist J. Van 't Hoff and French scientist Lebel in the same year, but they have studied this independently, अलग-अलग, argued that spatial arrangement of four groups around the carbon atom is tetravalency or tetrahedral if all the substituent attached to the carbon are different. See, most important, ये दोनों ने एक आर्ग्यूमेंट सामने रखी कि हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, कार्बन कैन कंबाइन विद 4 अदर मॉलिक्यूल्स और 4 अदर फंक्शनल ग्रुप्स टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावैलेंसी। अगर कार्बन की ये जो चारों चार वैलेंसी है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, देन द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड। तो वो कार्बन की जो मिरर इमेज होगी, टेट्राहेड्रल कार्बन, हम जानते हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये टेट्रावैलेंसी पूरी होने के बाद अगर हमने देखा कि चारों चार वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो वो कार्बन की जो मिरर इमेज होगी या वो कंपाउंड की जो मिरर इमेज होगी वो सुपर इंपोजिबल नहीं है, नॉन सुपर इंपोजिबल। ये सुपर इंपोजिबिलिटी क्या होती है, आई एम एक्सप्लेनिंग, वेट, समझा रहा हूं। मेंशन किया गया है कि if carbon is tetrahedral and if all the substituents attached to that carbon, मतलब उसकी चारों चार वैलेंसी डिफरेंट हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, then the mirror image of molecule is not superimposed, not overlapped on the molecule. Such a carbon is called asymmetric carbon or stereocenter. वो कार्बन को asymmetric carbon या stereocenter कहते हैं, a word asymmetric. Now, what is the meaning of asymmetric carbon? A carbon whose all the four valencies are associated with a different functional group. एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों चार वैलेंसी, टेट्राहेड्रल वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से एसोसिएटेड है, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। अगर वो एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजिबल है, नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी। अब जानते हो कि हमारा हाथ जो है उसकी मिरर इमेज, ये उसकी मिरर इमेज है। अब अपना हाथ अगर आईने के सामने रखोगे तो ये उसकी इमेज क्रिएट होगी। क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल है? नो, इट इज कॉल्ड नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी। ये कंप्लीटली कोइंसाइड नहीं हो रहा है। सो द हैंड एंड इट्स मिरर इमेज इज नॉन सुपर इंपोजिबल, ये नॉन सुपर इंपोजिबल है। सिमिलरली कार्बन जिसकी चारों चार वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से एसोसिएट होगी, वो टेट्राहेड्रल शेप में होगा, तो वो टेट्राहेड्रल कार्बन जो होगा या वो मॉलिक्यूल जो होगा उसकी मिरर इमेज उस पर नॉन सुपर इंपोजिबल होगी। अगर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज क्रिएट होती है तो वो कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कह सकते हैं। द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक द सिमेट्री, ये जो मॉलिक्यूल है उसमें सिमेट्री नहीं होती है, एंड इट इज रिफर्ड एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। जो सिमेट्री पोजेस नहीं करता है उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब एसिमेट्रिक कार्बन। The asymmetry of molecule along with non-superimposibility of mirror image is responsible for optical activity in such organic compound. Which compounds are called optically active compound? Those compounds having asymmetry. Those compounds having asymmetry. The first condition, asymmetry होनी चाहिए. Like we have studied in case of tetrahedral carbon. कार्बन की चारों चार वैलेंसी अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से एसोसिएट करी गई है तो वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उस पर नॉन सुपर इंपोजिबल होगी। एक एसिमेट्री, दूसरा नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी। दिस टू आर रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? एक, वो एसिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा उसकी मिरर इमेज जो फॉर्म होती है वो नॉन सुपर इंपोजिबल होनी चाहिए। एसिमेट्री एंड नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑफ अ मिरर इमेज मेक्स दोस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। कोई भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को जज करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए आपको उसकी एसिमेट्री और उसकी नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी को एक्सप्लेन करना होगा। एसिमेट्री जो यहां पर मेंशन करी गई है, मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए थे। हैंड, फुट, ये दोनों मिरर इमेजेस है। दिस मिरर इमेजेस आर सुपर इंपोजिबल, ये कंप्लीटली कोइंसाइड होती है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। दे आर नॉन किराल सब्सटेंसेस, नॉन किराल, but these substances are all, these objects are called chiral objects. जो chiral objects है they are responsible, chiral means asymmetric,
किराल का मतलब ही एसिमेट्री होता है, सिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी ऑफ अ मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इंपोजिबल है, देन वी कैन से दैट दोस सब्सटेंसेस आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एंड इफ द मिरर इमेजेस आर सुपर इंपोजिबल, that means the substance is achiral, and achiral means optically inactive. See, chiral, non superimposable, optically active. Got it? And if it is achiral means symmetric, superimposable, mirror images are superimposable, then they are optically inactive. यहां पर asymmetry है, यहां पर symmetry है. Asymmetric carbon means chiral carbon whose mirror images are non superimposable. If mirror images are non superimposable and chirality is present, then it is called optically active substance. If a substance is achiral means it is a symmetric one means whose mirror image is completely coincide or superimposable, then it is called optically inactive substance. तो ये था optically active और optically inactive substance का explanation about chirality and symmetry and non-symmetry of carbon. Moving forward, जो हम लोग next discussion की ओर जा रहे हैं, which is another important term called racemic mixture, racemization. And enantiomers. Let's see what is the meaning of enantiomer first, and then we'll discuss the racemization. Enantiomers first. The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images. As I mentioned, those stereoisomers, those are non-superimposable. Chiral carbon, जिसमें अंदर एटलीस्ट एक chiral कार्बन होगा, एक कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो एटलीस्ट वन किराल कार्बन पोसेस करते हैं, उनको हम एसिमेट्रिक कार्बन्स कहते हैं. ये किराल सेंटर्स होते हैं. किराल सेंटर्स की प्रेजेंस जो है वो उनकी मिरर इमेजेस को नॉन सुपर इंपोजिबल बनाती है. अगर मिरर इमेजेस जो है वो नॉन सुपर इंपोजिबल है, तो ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के इनांशियोमर्स कहते हैं. इनांशियोमर्स, दोज मिरर इमेजेस व्हिच आर नॉन सुपर इंपोजिबल, दे आर कॉल्ड इनांशियोमर्स. ये एक आइसोमरिज्म का टाइप है. हम जानते हैं कि डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं. दे डिफर इन देयर कन्फर्मर्स, मतलब उनकी स्पेस के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. ये डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है. ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो जनरली इनांशियोमर्स होते हैं. इनांशियोमर्स मतलब जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं हो पाती है, ये इनांशियोमर सब्सटेंसेस है. इनांशियोमर possesses identical physical properties, namely their melting point, boiling point, refractive index. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनांशियोमर्स की सेम होती है. दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन. इनांशियोमर्स में खाली एक ही डिफरेंस होता है, वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करती है. एक इनांशियोमर होगा, अगर वो लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, देन अदर इनांशियोमरिक इमेज रोटेट्स इनटू द राइट हैंड डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, वाइस वर्सा. If one of the enantiomer is dextrorotatory, मतलब which deviates the plane of polarized light into the right hand direction, the other one will always be a levorotatory. That means it can deviate the plane of polarized light into the left hand direction. तो जो dextro और levorotatory substances है, they are called enantiomers, and their mirror images are non superimposable. उनको mirror images को superimpose किया जा सकता नहीं है. But the mixture of these enantiomers in equal proportion means 50% dextrorotatory substance and 50% of a levorotatory substance. 50 dextro, 50 levo, plus minus. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है और 50% लीवोरोटेटरी सब्सटेंस है, जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे के रोटेशन को नलीफाई कर देते हैं, कैंसल आउट द रोटेशन. मिक्सचर में 50-50 प्रोपोर्शन है. 50-50 का मतलब अगर 50% कंपाउंड जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में डेविएट करता है, तो बाकी का 50% उसको लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में डेविएट कर देता है. दैट मींस दे नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दे नलीफाई द रोटेशन ऑफ ईच अदर, और इसीलिए ये जो 50-50% का जो मिक्सचर होता है, इट बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव.
जो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है या 50% ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% ऑफ लिवोरोटेटरी का जो कॉम्बिनेशन है which becomes optically inactive is called racemic mixture. उसको racemic mixture कहते हैं. racemic mixture या racemic modification. ये racemic mixture या racemic modification को आप प्लस और माइनस साइन से इंडिकेट कर सकते हो. ये प्लस और माइनस का इंडिकेशन ये इंडिकेट करता है या प्लस और माइनस की प्रेजेंस ये इंडिकेट करता है कि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ 50% ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड 50% ऑफ अ लिवोरोटेटरी सब्सटेंस. जो 50% ऑफ डेक्स्ट्रो और लिवोरोटेटरी सब्सटेंस का जो कॉम्बिनेशन है व्हिच इज कॉल्ड racemic mixture. ये racemic mixture और racemization का एक्सप्लेनेशन था. नेक्स्ट वी हैव टॉपिक टू डिस्कस इन फॉर्म ऑफ inversion and retention. We'll discuss this inversion and retention in our next session. Stay tuned. Welcome to Shikshaism. The next topic of discussion for chapter number 10 is retention and inversion. We'll discuss retention, inversion, racemization in detail now. First we have retention. Retain मतलब to remain as it is. The process of retention we'll discuss first. Retention of a configuration is a preservation of a spatial arrangement. As I mentioned, remain as it is or preserved as it is. Preservation of a spatial arrangement of a bond to the asymmetric center during a chemical transformation. कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एसिमेट्रिक सेंटर के ऊपर या एसिमेट्रिक सेंटर जो है वहां पर स्पाशियल अरेंजमेंट जो है वो प्रिजर्व रहे, दैट मींस इट डज नॉट चेंज, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिटेंशन. अगेन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पाशियल अरेंजमेंट. स्पाशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट होती है उसको स्पाशियल अरेंजमेंट कहते हैं. द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ अ स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स to asymmetric carbon center or asymmetric center during the chemical reaction or transformation. In general, if during a reaction no bond to the stereo center is broken, stereo center से associated कोई भी bond जो है वो break ना हो, keep in your mind. In general, if during a reaction no bond to the stereo center is broken, the product will have the same general configuration of groups around the stereo center as that of reactant. Reactant की जो configuration है वो same configuration हो, उसका जो stereo center है, this is called stereo center. ये stereo center के around में आप देख सकते हो no change in spatial arrangement is observed. Such a reaction is said to proceed with the retention configuration. ये reaction को आप retention configuration कह सकते हो. See, ये जो कार्बन है ये आपका स्टीरियो सेंटर है. ये कार्बन के एडिशन कार्बन से हमने OH ग्रुप को निकाला. ये OH ग्रुप को निकाल के हम कौन से ग्रुप को ऐड कर रहे हैं? क्लोरीन ग्रुप को. यू कैन ऑब्जर्व देयर इज नो चेंज फॉर दिस पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है. स्टीरियो सेंटर के कोई भी बॉन्ड को नहीं तो हमने ब्रेक किया है ना तो उसमें कोई चेंजेस लाया है. जहां से OH ग्रुप को निकाला वहीं पर क्लोरीन ग्रुप को ऐड कर दिया है, मतलब OH को सब्स्टिट्यूट किया गया बाय Cl एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन. इसको रिटेंशन कहते हैं. सच रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. कंसीडर एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लिया है हम पर लिवो. ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है? दैट इज अ लिवो सब्सटेंस. लेवोरोटेटरी 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है. 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल. ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल. ये एक लेबोरेटरी सब्सटेंस है जिसको हमने HCl के साथ रिएक्ट किया है. यहां पर Cl जो है वो OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन और इन द स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ अ स्टीरियो सेंटर, एंड दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिटेंशन मैकेनिज्म. इसको रिटेंशन कहते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट It is important to note that the configuration at a stereo center in a reactant and the product is same, but the sign of optical rotation changed in a product. Optical rotation की जो साइन है नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई. एक बार फिर से देखेंगे.
ये आपकी प्रोडक्ट है। यहां पर रिएक्टेंट की जो साइन थी वो लेवो रोटेटरी थी, देख सकते हो माइनस, जबकि प्रोडक्ट जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लस साइन। ऐसा क्यों हुआ? लेट्स सी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ स्टीरियो सेंटर रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज द सेम। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, बट द ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज्ड। ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज हो गया। दिस इज बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड्स विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन at symmetric center may have different optical rotation. ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर इसमें कोई चेंज नहीं आया तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज नहीं होगा। ये मेंशन किया गया है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर या हम कह सकते हैं कि एसिमेट्रिक सेंटर जो है अगर वो सेम रहेगा फिर भी वो कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज हो सकता है। ये ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के डेविएशंस की वजह से डिसाइड होता है। While other may have levorotatory, then the compound may have a dextrorotatory substance. मतलब रिएक्टेंट अगर लेवोरोटेटरी है तो कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन में खाली स्टीरियो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता है, गॉट इट? बट वी कैन ऑब्जर्व अ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो लेवोरोटेटरी है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी में कन्वर्ट हो सकता है फॉर द रिटेंशन। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। रिटेंशन के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वर्जन एंड रेजमाइजेशन। तो लेट्स डिस्कस रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेजमाइजेशन। Welcome to Shikshaism. Now we'll discuss the topic called inversion, retention and racemization. We have already studied the retention in detail in our previous session. Here we'll discuss inversion, racemization along with retention. There are three outcomes for a reaction at an asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom पर अगर डायरेक्ट कोई रिएक्शन होगी, देख सकते हो यहाँ पर ये जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम से ही मैं हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं डायरेक्टली, देन वी हैव टू पॉसिबल आउटकम्स, और सॉरी थ्री पॉसिबल आउटकम्स, नॉट टू, थ्री पॉसिबल आउटकम्स। देयर आर थ्री आउटकम्स फॉर अ रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ डायरेक्ट कोई रिएक्शन परफॉर्म की जाएगी, देन वी हैव थ्री पॉसिबल आउटकम्स। व्हेन द बॉन्ड डायरेक्टली लिंक्ड टू द एसिमेट्रिक कार्बन इज ब्रोकन, देख सकते हो यहां पर एसिमेट्रिक कार्बन के साथ डायरेक्ट जो बॉन्ड था उसको ही ब्रेक कर। हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर जहां पर हमने रिटेंशन देखा था, रिटेंशन के अंदर हमने ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया था जो एसिमेट्रिक कार्बन से डायरेक्ट एसोसिएट नहीं करता था, बट हियर वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड व्हिच इज एसोसिएट डायरेक्टली विद द एसिमेट्रिक कार्बन। इन दैट केस वी कैन हैव थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नंबर वन, प्रोडक्ट ए, जो साइड से X को रिमूव किया जाए वही साइड पर Y जो है वो एंटर हो जाए, दैट्स आवर प्रोडक्ट A. If A is the only compound obtained, then the process is called retention. इसको रिटेंशन कहते हैं। अगर कंपाउंड A अकेला फॉर्म होगा, then the product or the reaction is called retention. क्योंकि यहां पर हमने X को रिमूव करके Y ऐड कर दिया है ऑन द सेम साइड, जहां पर बाकी की जो अरेंजमेंट है, स्पाशियल अरेंजमेंट, वो डिस्टर्ब हुई नहीं है। जहां से X को रिमूव किया वही Y को ऐड कर दिया है, and that's why this process is called retention and the product so obtained is called a retended product. जो product A है वो retended product है। On the other side we have product B, दूसरा रिएक्शन है। देख सकते हो कि पूरी जो प्रोसेस है उसको हमने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्जन कर दिया। इन्वर्जन मतलब जहां पर X था उसकी ऑपोजिट साइड पर Y है, ऑपोजिट साइड पर X is present on the left hand side, here Y जो X को सब्स्टिट्यूट कर रहा है इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, और ये जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप है वो पूरे इन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे कि हम अम्ब्रेला ओपन करते हैं और हवा की वजह से अम्ब्रेला जो है पूरा इन्वर्ट हो जाए, उल्टा, ये कंडीशन हुई है, एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। हियर इट इज कॉल्ड रिटेंडेड प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन और इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इफ B is the only compound obtained, then the process is called inversion and the configuration is known as inverted configuration in B. So A is retended product, B is inverted product. But the combination of these two is also possible. Combination of these two मतलब
50% of inverted product and 50% of retained product in form of A plus B. This combination of 50% of retained product and inverted product is known as racemization or racemic mixture. उसको racemic mixture कह सकते हैं. See, 50-50 mixture of A and B obtained mixture of A and B obtained, then the process is called racemization. ये process को क्या नाम दिया जाएगा? Racemization it is. The product optically inactive. ये जो racemic product होती है या racemic mixture जो होता है, it is optically inactive. As one isomer can rotate the plane of polarized light into the right hand direction, then the other will rotate into the left hand direction. And that's why the optical isomers of a 50-50%, or we can say that if the combination of 50% dextrorotatory and 50% levorotatory substance is there, this is called racemic mixture, and this racemic mixture is basically optically inactive. ये racemic mixture जो है वो हमेशा optically inactive होता है. The 50-50% of A and B obtained, the process is called racemization, and the product obtained is called optically inactive product. क्योंकि 50% dextrorotatory है, 50% levorotatory है, they nullify the effect of each other, and that's why the combination of retended and inverted product into the equal proportion or equimolar proportion, 50-50 proportion, is called racemic mixture. So here we conclude the optical aspect of SN reaction. We have studied optical activity, chirality, enantiomers, inversion, retention, and racemization.